दीप पाजळे तेजाने, दावी दिशा अंधाराला, नवा मार्ग नवविचार देई नवरचना समाजाला. Myself Gajanan Shadke, lecturer in physics. Today we are learning about a topic in physics, that is optics. The topic optics is related with the phenomena of light. Generally there are two types of optics here we have to study it in this academic year, that is a ray optics and wave optics. In case of ray optics we are learn about a formation of images by using a mirror and the lenses. There is two basic type of phenomena of light which is used to formation of images. First of all, that is a reflection, and when we consider the reflection we must set in a mind that is a mirror, and when we consider a refraction of light then the image formation is by using a convex lens or concave lenses. So first of all we see about a reflection of light. What is this reflection? That is a basic phenomenon. ये phenomena of light है जो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वहां पे हम देखेंगे. हियर वी कंसीडर ए प्लेन मिरर दैट इज अ XY having a non reflecting side at its downward side, and when the light ray is incident on this plane mirror at a point O, that is O is called as point of incident, and at this point O we draw a one normal, and this incident ray that is called as OA, named as OA, this incident ray makes an angle with a normal that is called as angle of incident, and at the time the light which is reflected that is represented by OB. Incident light is bounced back in a same medium, that is a reflected light, and is known as reflection of light. In this case the reflected ray OB also makes an angle with the normal that is called as R, and according to the law of reflection that I is always equals to R. This is a law of reflection. In case here we see some example of this one. If I consider the incident ray makes an angle with the normal is 30 degree, then the angle of reflection is also become 30 degree. But in case of normal incident, when we consider a light ray is incident normally on the mirror, then it will be reflected back with the same path, and in that case the angle of incident is become 0, so that angle of reflection is also become 0 in case of normal incident. Now here we have to look out about the types of mirror. Generally there are two types of spherical mirrors. The spherical mirrors, what is the spherical mirror? The spherical mirror are a small cut of large sphere. It is a small cut off. Small cut off means एक बड़े स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर उसको हम कंसीडर करेंगे तो इस कर्वेचर की तरह दिखेगा. ये कर्वेचर, ये मैंने दो कर्वेचर निकाल लिए. दो कर्वेचर मैंने इसलिए निकाल लिए क्योंकि मैंने आपको इसके दो टाइप्स बताने हैं. तो दो टाइप्स कैसे हैं? देखो, मिरर जब कहते हैं तो उसमें एक सरफेस होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग और एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग. तो अगर ये मिरर का मैंने अंदर का सरफेस अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दिया और बाहर का सरफेस है उसको मैंने रिफ्लेक्टिंग कर दिया, तो बाहर का सरफेस बल्गिंग सरफेस है जो बाहर निकला हुआ है, तो इस सरफेस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, व्हाट वी कॉल कॉन्वेक्स मिरर. और जो सरफेस इनर सरफेस अगर मैंने इस कर्व का इनर सरफेस को अगर मैंने रिफ्लेक्टिंग रखा और बाहर के सरफेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दिया, तो जो इनर सरफेस है जो कर्व है अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर. तो ये दो टाइप्स के आपके मिरर है. तो स्फेरिकल मिरर में जो अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है वो अभी हम देखेंगे कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर डिस्कस फॉलो. नाउ here we consider a concave mirror. It is a concave mirror, is that right? The center of this concave mirror is known as pole of the mirror. This is the same about a convex as well as concave mirror. Then here we consider a center of this imaginary sphere. The center of that imaginary sphere, it is known as center of curvature of this spherical mirror, and it is denoted by C. Then when we insert a parallel light rays on this concave mirror, then these light rays are focused at a single point on the principal axis, and this single point is known as focus. It is known as focus where the parallel light rays are meet together. ऐसा एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये मिरर ने क्या किया, जो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी लाइट रे को एक पॉइंट पे जमा कर दिया, तो वो जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे फोकस. अब ये जो फोकस पॉइंट है ये देखो एग्जैक्टली सी और पी के बीच में आएगा बेटा. अब यहाँ पे हम
कुछ डिस्टेंस मेजर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये P से लेके C तक का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसको मैंने कहना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय R। और जो डिस्टेंस मैंने पोल से लेके फोकस तक मैं जो मेजर करूंगा उसको कहना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, दैट इज डिनोटेड बाय F। और यहाँ पे R और F के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है F इज इक्वल्स टू R/2। तो मैंने ये क्यों लिखा बेटा, क्योंकि C और P के एग्जैक्टली बीच में फोकस आ रहा है, तो फोकस C और P को बराबर हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसलिए R/2 लिख रहे हैं। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर के बारे में। अब कॉन्केव मिरर ने क्या किया है, पैरेलल लाइट रे को जमा किया है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कन्वर्जिंग मिरर। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आ रही है तो चलो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एक ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो इसका जो आउटर सरफेस है, जो बल्किंग सरफेस है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्लेक्टिंग होगा। और यहाँ पे जो सेंटर होगा इस मिरर का उसको होगा ना हम पोल कहेंगे, जो पोल में से जो लाइन पास हो रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड से लाइट रेज पैरेलल आएगी। अगर ये पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर हमने इंसिडेंट कर देते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिरर से दूर चले जाएंगे, दूर की तरफ जा रहे हैं, यानी वो डाइवर्जेंस की तरह दिख रहा है। डाइवर्जन आपने सुना होगा, रोड पे लिखा रहता है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब है भाई दूर से चले जाओ। तो ये जो लाइट रे, पैरेलल लाइट रे जो आ रहे हैं वो दूर जा रहे हैं। तो ये देखिए ना, दूर जा रहे, जाने वाले जो लाइट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे दूर जा रहे हैं वो किसी एक पॉइंट से दूर जाते हुए लग रहे हैं। इट सीम्स टू बी, दिख रहा है ऐसा, इट सीम्स टू बी डाइवर्जेस फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस पॉइंट को हम इसका फोकस करेंगे। तो ये किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हो रहा है। अभी फिर से वही है, फिर देखो बड़ा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर आएगा, क्योंकि ये सर्कल जो बनेगा इसका पूरा स्फीयर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे आएगा, ये सी हो गया। और यह सी और पी के अगेन बीच में रहेगा, तो यही रिलेशन इसके लिए अप्लाइड होगा। अब दूसरी जो बात है कि जब हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए कुछ तो भी साइन ऑफ कन्वेंशन है, कुछ रूल है, उसके हिसाब से हमें डिस्टेंस मेजर करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। तो हियर लुक आउट फॉर द साइन ऑफ कन्वेंशन। एक मैं सिंपल ट्रिक आपको बता दूंगा मिरर में साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे लेते हैं। साइन ऑफ कन्वेंशन की जरूरत क्यों होता है पहले वो देखेंगे। उसके लिए हमने देखना है मिरर इक्वेशन। अब मिरर इक्वेशन में देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई फोकस है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जैसे हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमें मिलती है। तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है मिरर का, वो रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये रिलेशन को हम कहते हैं मिरर रिलेशन। और मिरर रिलेशन में जो v है, v आपका डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बन रही है। u रिप्रेजेंट करता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। और f आपका रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। चलो यहां पे हमने अभी ये इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो इक्वेशन सीधा सीधा नहीं ले सकते। तो ये इक्वेशन यूज करने के लिए वी शुड टेक द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके लिए हमें साइन लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मिरर के बारे में एक ध्यान में रखना है बेटा आपको, जो मिरर है इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड देखना है। रिफ्लेक्टिंग साइड के तरफ जो भी पॉइंट आ रहा है उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग की साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हमने हमेशा पॉजिटिव लेना है। बस ये दो चीजें ध्यान में रखो। अब कैसे, तो देखो ये कॉन्केव मिरर है आपका, कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड इधर की है, अंदर वाली है, तो जो फोकस आ रहा है वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ आ रहा है, तो कॉन्केव मिरर के लिए ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है वो फिर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ आ रहा है। तो अगर मैंने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है कॉन्केव मिरर के लिए तो ये मैं P से लेकर C तक डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ मैंने मेजर करना है तो वो फिर से नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखो, यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, फोकस कहाँ पे आ रहा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे की साइड में आ रहा है, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग की साइड की तरफ फोकस आ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखिए P से C का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये C पॉइंट जो है वो फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, अगेन इसको हम पॉजिटिव लेंगे। यानी बात सही है
कि जो साइड रिफ्लेक्टिंग आपको दिख रही है मिरर की, उसके सामने का जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो सभी डिस्टेंस आपने निगेटिव लेना है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके साइड के जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब आपके सीधे सीधे ध्यान में आएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात करूंगा तो कॉन्केव मिरर में जो आपका यफ होगा, यफ इज निगेटिव होगा। यफ क्या होगा आपका? निगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव में यफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, इसलिए उसको निगेटिव लिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव आएगा, आर इज निगेटिव, आर भी निगेटिव आएगा, आर की भी वैल्यू निगेटिव आएगी। अब ये देखो, ये कॉन्वेक्स के बारे में जब मैं देखूंगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं जब बोलूंगा तो क्या बोलना है आपको? देखिए यहाँ पे जो फोकस बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? नॉन रिफ्लेक्टिंग के साइड पे बन रहा है फोकस, तो यहाँ पे इसका फोकस जो है यह इज पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर इज आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।